Good morning, students. Chapter number 5 we have started. In this one, we are watching how to rural development is extending on, how to rural development is going on. In this one, we are watching the first three important sectors: agriculture sectors, industrial and service sectors. The agriculture sectors is divided into two parts. First one is agriculture, and second one allied activity related to that. Okay. So agricultures are three types: farmer, small farmers, marginal farmers and large farmers. Okay, also they are doing some important work just like plantations, forestry, fisheries, dairy and horticultures. Okay, second one, industry where the raw material convert into goods and services. Industry is the place where economic activity happening, where the raw material is converted into goods and services, or manufacturing the goods and services. This is the secondary sectors we are calling. And in this one we are calling the dividing the industrial sectors into three part. First one, small industry, cottage industry, and third one, rural industries. Okay, afterward we are also watching the service sectors. In the service sectors is also called tertiary sectors. All the business related activities and to providing goods and services for the consumers is the actual work of service sectors. In the service sectors there are so many services came, just like tradeship, computer services, restaurant, tourism. Okay, wholesale and retail marketing, transport operators, professionals and technicians, all are the part of service sectors. Also we are discussing the rural development, how to rural development importance of rural development. Okay, why the rural development is more important. In this one we are completed all points. The first point is to providing public health and sanitation facilities. It is very important to provide safe drinking water, sanitation facilities in the affordable rate to the consumers of rural areas. Also it is important to improve the life to the improve the standard of life to the rural areas persons. Second one, we are watching the literacy rate. The education is powerful instrument to economic and social development. So therefore it is important to fill the gap between rural areas and urban areas literacy rate, right? And provided all facilities to the rural area students like urban area students. Okay, third one we are watching, it is more important to improvement of the women's. Okay, to completely reduces gender disparities. Okay, to meet डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ रूरल वुमेंस. गांव की औरतों की भी ज़रूरतें कंप्लीट होनी चाहिए. उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. उनको सरपंच बनाना चाहिए, उनको कॉरपोरेटर बनना चाहिए, एमएलएस बनाने की ज़रूरत है. उनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है तो वो जाने की देने की ज़रूरत है. ये रूरल एरियाज़ में इम्पोर्टेंस है. उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स. लॉ एंड ऑर्डर्स को मानना इम्पॉर्टेंट है. हर एक पर्सन स्पेशली सम स्पेशल कैटेगरीज के पर्सन्स की राइट्स को मानना इम्पॉर्टेंट है और उनको संभालने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म. देयर आर सम लैंड रिफॉर्म्स डूइंग बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट नाउ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लैंड रिफॉर्म, जस्ट लाइक सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. ज़मीन जो छोटी छोटी होती जा रही है वो कम होना चाहिए. रेंट कितना होना चाहिए ये भी डिसाइड करके देना चाहिए गवर्नमेंट ने. जो टेनेंसी है यानी जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स है, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके राइट्स प्रोटेक्शन होने चाहिए, तभी रूरल एरियाज़ में इक्वलिटी आ सकती है. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट होना चाहिए. मतलब हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशंस, ये सब अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट यानी कर्जा मिलना चाहिए फार्मर्स को. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, इनसे लोन मिलना इम्पॉर्टेंट है. लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि इरिडेक्शंस ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी कम होनी चाहिए.
जैसे ही पॉवर्टी कम होगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाएगा वैसे ही और पॉवर्टी कम होती जाएगी। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अभी हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से टाइप्स का एग्रीकल्चर मिलता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी खेती को मिलने वाला लोन। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। देखो, एग्रीकल्चर ग्रोथ करना है यानी खेती की ग्रोथ करनी है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट या प्री रिक्विसाइड नीड्स क्या है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट जितना मिलेगा उतना उतना क्या होगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा। ओके, उसी के साथ ये एग्रीकल्चर जो लोन है वो प्रॉपर मिलना चाहिए यानी एडुकेट मिलना चाहिए एंड टाइमली मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। जैसे अगर बारिश से पहले उनको अगर लोन अप्रूवल होगा तो ही वो फसल उगा सकते हैं। तो ये एडुकेट एंड टाइमली फाइनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे यहाँ पे रूरल क्रेडिट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रूरल फैमिलीज़ हैं। मोस्ट ऑफ लोग रूरल फैमिलीज़ में रहते हैं। ओके, उनके पास सेविंग कम होता है इसलिए उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर क्रेडिट ये नीचे दिए हुए टाइप्स में से है। सो यू हैव टू राइट डाउन दिस चार्ट वेरी प्रॉपरली। अभी एग्रीकल्चर को लोन कैसे कैसे मिलता है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है लोन। एग्रीकल्चर क्रेडिट तो टेनर, समय कितना होता है। क्रेडिट एक टाइम पीरियड में मिलना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी एग्रीकल्चर लोन की 3 टाइप्स है। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन। ओके, अभी ये लोन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड हो सकता है 2 ईयर्स का, 2 साल का, 2 साल से ज़्यादा का नहीं दिया जाता। अगर फार्मर्स ले रहा है तो उसको 2 साल में उसको वो रिटर्न करना है। ओके, अभी ये फार्मर्स की शॉर्ट टर्म्स रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, मतलब फार्मर्स की तुरंत जो शॉर्ट ज़रूरत है उनको कंप्लीट करता है। ओके, तो फार्मर्स की शॉर्ट टर्म लोन कौन कौन सी है, ज़रूरतें कौन सी है। तो पहला है उनको फर्टिलाइज़र परचेस करने, फर्टिलाइज़र्स यानी खत उनको परचेस करना है। दूसरा है हाई एल्डिंग्स वैरायटी सीड्स, अलग अलग जाति के या अलग अलग उपजाति के सीड्स यानी बीज, उनको तो पहले तो फर्टिलायझर परचेस करणे यानी अच्छी खाद परचेस करनी आहे, खतं परचेस करायची आहेत। सेकंड है हाई एल्डिंग सीड्स, अच्छी फसल देने वाले सीड्स या बीज। उसी के साथ इसलिए ये टाइप्स का लोन दिया जाता है। कई बार फार्मर्स को बहुत सारी रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज सेलिब्रेट करनी होती है। जैसे गाँव में बहुत सारे रिलीजियस मैटर होते हैं, फेयर्स होती है, जत्रा होती है, या बहुत सारे भगवान की जो अलग अलग पूजाएं वगैरह होती है, इट्स अ रिलीजियस मैटर होता है। और कई बार सोशल सेरेमनीज, उसके घर की शादी के लिए भी वो ये पैसे खर्च कर सकता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट से। ओके, ताकि वो उसके ऊपर दूसरे कर्ज का बोझा ना हो, दूसरे लोन का बोझा ना हो, इसलिए ये टाइप का क्रेडिट दिया जाता है। देखो, शॉर्ट टर्म लोन 2 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है, मतलब 2 साल के लिए दिया जाता है फार्मर्स को, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये फार्मर्स की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, या हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट टर्म, तुरंत उसकी कुछ ज़रूरतें होती है वो कंप्लीट करने के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए ये टाइप्स का लोन मिलता है। तो शॉर्ट टाइम कौन सी ज़रूरतें होती है, तो उसको फर्टिलाइज़र परचेज़ करने, उसको अच्छे सीड्स परचेज़ करने, इसके लिए ये टाइप्स का लोन मिलता है। कई बार फार्मर्स उसको रिलीजियस यानी गांव में कोई ट्रेड फेयर्स होता है, भगवान की यात्रा होती है, तो उनके लिए भी खर्च कर सकता है। या सोशल सेरेमनीज, गांव में कुछ उसके घर में शादी है या कोई सोशल सेरेमनी है, गांव में कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए वो खर्च कर सकता है। दूसरा है मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म का लोन। अभी ये लोन फार्मर्स को 5 साल तक के लिए मिलता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का है। ये उसको आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतें कंप्लीट करने को मिलता है। स्पेशली
ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट यानी खेतों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसकी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाइंग कैटल्स, जानवर खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर्स है या हल है परचेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डिगिंग अप द कैनल, उसके खेतों में ही कुएं या हम लोग कह सकते हैं वेल, डैम ओपन करने लेने के लिए भी, डैम नहीं कह सकते, कैनल, छोटे छोटे डबके, तालाब खोलने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं उसको वेल, कुएं खोदने के लिए ये टाइप्स का लोन दिया जाता है। ओके, तो मीडियम टर्म लोन 5 ईयर्स का होता है। इससे फार्मर्स की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाती है, जैसे उसको ज़मीन में कुछ सुधारना लानी है, ज़मीन खरीदना है, जो ज़मीन है उसके उसमें अच्छी फसल लानी है, तो उसके लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। कैटल्स खरीद सकता है, जानवर खरीद सकता है, बैल, गाय, भैंसे खरीद सकता है। इक्विपमेंट खरीद सकता है, एग्रीकल्चर्स के ट्रैक्टर्स खरीद सकता है, हल खरीद सकता है, या कोई मशीनरी खरीदनी है तो वो खरीद सकता है। और वेल या कैनल ओपन डिगिंग यानी खोद सकता है। ओके, पंप वगैरह ले सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म का क्रेडिट 5 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। ओके, लॉन्ग टर्म का क्रेडिट ये 5 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। इससे फार्मर्स उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल नीड्स है उसको कमिट कर सकता है, जैसे वो ट्रैक्टर्स परचेस कर सकता है, लैंड में परमानेंटली इम्प्रूवमेंट कर सकता है। समझो किसी के लैंड में अगर कुछ भी करेंगे तो भी उसमें फसल नहीं आती, बहुत सारे लैंड्स होती है जिसमें बहुत सारा रॉक्स होता है, या अर्थक्वेक प्रोन जोन होता है, भूकंप वाला एरिया होता है, ड्रॉट प्रोन जोन होता है, सूखा पड़ने वाला एरिया होता है। तो ये अर्थक्वेक जोन है या ड्रॉट प्रोन जोन है, उन जगहों पर लैंड को डेवलप करना पड़ता है। लैंड में बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इसके लिए वो ये टाइप्स का लोन परचेज कर सकता है। ओके, ये टाइप का लोन परचेज कर सकता है। ओके, तो लोन 2 टाइप्स का होता है, एक है प्रोडक्टिव और दूसरा अनप्रोडक्टिव। ज़रूरतों के लिए लोन लेना प्रोडक्टिव, मतलब एग्रीकल्चर्स, खेती में प्रोडक्शन लेने के लिए, या खेती में प्रोडक्शंस के लिए जो लोन लिया जाता है उसको प्रोडक्टिव लोन कहते हैं। ओके, जैसे वो उससे ट्रैक्टर्स खरीद सकता है, लैंड खरीद सकता है, सीड्स खरीद सकता है, फर्टिलाइजर्स खरीद सकता है, सीड्स खरीद सकता है। ओके, या डिगिंग कैनल्स कर सकता है, इक्विपमेंट खरीद सकता है, कैटल्स खरीद सकता है। तो ये जो लोन है प्रोडक्टिव है। ओके, दूसरा है अनप्रोडक्टिव। फार्मर्स कई बार लोन लेता है लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए लोन लेता है, तो उसको कहा जाता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। वो खुद के ही पर्सनल कंजम्पशन के लिए उस लोन का इस्तेमाल करता है। ओके, जैसे उसके घर में अगर मैरिज है तो उस मैरिज के लिए वो पैसे खर्च कर देता है। उसके गांव में कोई रीजनल सेरेमनी है, ओके, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, दरगाह बनाना है, ओके, या गांव में कोई फेयर्स है तो उनके लिए ये खर्च कर सकता है। तो क्रेडिट 2 टाइप्स का होता है। ओके, पहला समझ में आया, शॉर्ट टर्म 2 साल के लिए दिया जाता है, 2 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है। इससे फार्मर्स अपनी शॉर्ट टर्म तुरंत जो ज़रूरतें होती है वो कंप्लीट करता है। फर्टिलाइज़र परचेस कर सकता है, बीज सीड्स परचेस कर सकता है। ओके, दूसरा लोन है मीडियम टर्म लोन, ये 5 साल तक का होता है, अप टू 5 ईयर्स। ओके, 5 साल तक का होता है। इससे वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकता है, जैसे वो लैंड में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, कैटल्स खरीद सकता है यानी जानवर, गाय, भैंसे, बकरियां खरीद सकता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीद सकता है, ओके, ट्रैक्टर्स, हल, ओके, इनको परचेस कर सकता है। उसके बाद वेल या कैनल्स डिगिंग कर सकता है यानी खोद सकता है, कुआं वगैरह खोद के ले सकता है, या बड़ी सी विहीर या जिसको हम लोग वेल कहते हैं वो खोद सकता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन। ये लॉन्ग टर्म का क्रेडिट स्पेशली अप मोर देन 5 ईयर्स के लिए होता है। जो मार्जिनल या जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनको ये टाइप्स का लोन मिलता है, जिससे वो ट्रैक्टर्स परचेस कर सके,
या लैंड में परमानेंटली इम्प्रूवमेंट कर सके, इसलिए ये टाइप्स का लोन मिलता है. ओके. So student, just read whatever we are teaching, and if you have any queries, ask me anytime.